know about the Ahmadi sect because I only know that کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نہیں ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ ان کے بارے میں مزید تھوڑا ہمیں بتائیں۔ دین کا سوال تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی یہ احمدیت کون ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، وہ جاننا چاہتی ہے۔ احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہے۔ قرآن کی آیت صاف کہتی ہے، سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے۔ لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے ہیں، انگلش میں کہیں گے پروفٹ۔ رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے، وہ رسول جسے پیغام بھیجا گیا ہے اسے نبی کہیں گے۔ لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی ہے، کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، ہر رسول نبی ہے۔ تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی۔ لیکن احمدی لوگ، قادیانی لوگ کہتے ہیں نہیں، نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی، پیغام آیا، رسول جس کا مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا۔ تو ایک رسول جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے، جو کہ بالکل غلط ترجمہ ہے۔ وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ غلط معنی لے کر کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، نبی مطلب اونچا درجہ ہے، رسول نچلا درجہ ہے، اس لیے رسول آ سکتے ہیں۔ غلط ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول آئیں گے۔ ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان، جو کفر ہے۔ کفر مطلب وہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ منحرف ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے، they are doing کفر، وہ مسلم ہو نہیں سکتے۔ hope that answers the question۔ thank you۔ السلام علیکم، میرا نام نیرج ڈھینگرا ہے اور کام ویسے میں بہت کچھ کرتا ہوں، لیکن اس سے آپ کو میری حقیقت پتہ نہیں چلے گی۔ اور اتنا ہے کہ ایک سوال کا ہی ہے، لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا ذاکر صاحب، میرا خیال آپ پرسوں کے آپ فرائیڈے دوپہر کو یہاں پر آئے تھے، دوپہر کو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں کے انتظامات کیسے چل رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ آپ شاید خواتین کی برابری کے بارے میں بات کریں گے، ان کو یہاں پر برابر کا درجہ دیں گے، ان کو برابر نہیں یہاں پر آدھا بٹھائیں گے۔ بھلے عورت کی تعداد کم ہے لیکن ان کو کم از کم آگے بیٹھنے کا موقع ملتا، لیکن انہیں نہیں ملا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہوا۔ میں صاحب نے اچھا سوال کیا ہے۔ میں جمعہ کو نہیں آیا، میں سنیچر دوپہر کو آیا تھا، کل دوپہر کو۔ ہاں جی، بٹ اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے سوال میں۔ کہ جب میں ایک دن پہلے آیا اور انتظام دیکھا تو عورتوں کو برابری کیوں نہیں دی گئی؟ کوانٹٹی کے حساب سے تو برابر نہیں دے سکتے ہیں، برابر دیے تھے، اتنا زیادہ کیا تھا لیکن عورتیں نہیں آئیں تو کم کر دیا۔ پہلے تعداد پہ آؤں گا، پھر پوزیشن پہ آؤں گا، پوزیشن پہ بھی آؤں گا، انشاءاللہ جواب دوں گا، انشاءاللہ آپ کو بھی موقع دوں گا۔ تو پہلے اگر تعداد کی بات ہوتی ہے تو اکثر جب میں تقریر کرتا ہوں تو بمبئی کے اندر تقریباً 20 سے لے کر 33% تک خواتین آتی ہیں، تقریباً 1/4 یا 1/3 حصہ۔ میں عمان میں گیا تھا تو وہاں پر 50% خواتین تھی۔ تو میں نے کہا بھائی اتنا بہت کیوں بلاک کر کے رکھے، بٹ الحمدللہ 6000 پبلک تقریباً 3000 خواتین تھے، یہاں بھی کافی رکھے تھے، کم آنے کی وجہ سے کم کر دی۔ مرد حالانکہ کم از کم 7-8 گنا زیادہ ہیں، پھر بھی 2 مرد 1 عورت کا سوال۔ اگر حقیقت میں صحیح حق کروں تو مرد کے لیے 6 مائکرو فون ہونے چاہیے، خواتین میں 1۔ تو خواتین کو میں زیادہ اختیار دے رہا ہوں، برابر کے نہیں؟ یعنی کہ خواتین سارے مجمع میں 15% بھی نہیں ہوگی میرے خیال سے تقریباً، یعنی مرد 6-7 گنا زیادہ ہے۔ تو اگر برابر حساب کرنا ہے تو مرد حضرات کے مائکرو فون آتے 6-7، تو عورت کے پھر بھی میں نے کہا نہیں، مرد کے 2 عورت کے 1۔ جہاں تک کہ پوزیشن کا سوال ہے، پوزیشن میں بھائی صاحب جب ہم عورت کو عزت دیتے ہیں، آپ بیٹا بول لو کافی ہے جی بھائی صاحب، نہ بولو بیٹا بول لو کافی ہے، آپ سے بہت چھوٹا ہوں۔ آپ کی عمر کیا ہے؟
30 का हूँ। आई एम 30 है, मेरी उम्र 40 है, तो भाई साहब कहूंगा। अच्छा, मैं अंकल कह लूंगा। मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल है। चले ठीक है, माफ किया। क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? मेरे इल्म के ऊपर मेरी उम्र को जांचने की कोशिश मत कीजिए, आप सही पहचान गए हैं। और 40 का भी अभी 3 महीने पहले हुआ हूँ। तो मैं कह रहा था कि क्यों हमने औरतों को आगे नहीं रखा। इसकी वजह थी, वजह ये है कि ये कैमरा दिख रहा है आपको, कम से कम 7 कैमरे लगे हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो हमारा एक असूल है कि हम ज्यादा औरतों की नुमाइश नहीं करना चाहते। अगर क्लोज रहेंगे तो क्लोजअप जाएगा, अगर लड़की खूबसूरत होगी तो शायद आप उसे देखेंगे, आप नहीं मतलब बाकी लोग, फिर हिजाब टूट जाएगा। आप समझे ना? तो हमारा उसूल है कि हम औरत को इज्जत देते, लेकिन इज्जत देते टाइम पर कोई गलत आदमी उसको घूर घूर के देखा, सपोज मेरी बहन आ जाएंगी और कोई आदमी घूर के देखेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहन को कौन घूर के देख रहा है। तो मैं कहूंगा कैमरा हटाओ। तो इसीलिए दूर रखा है द लॉन्ग शॉट। मैं ये सोच रहा था कि स्टेज पर भी एक औरत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। वो बोलूंगा मैं, उसका भी जवाब दूंगा, स्टेज का भी जवाब दूंगा। जब लॉन्ग शॉट होता है तो हमारा असूल है कि खवातीन को दूर से दिखाना, और हमने एक सैटेलाइट चैनल शुरू किया है पीस टीवी। जब खवातीन का क्लोजअप दिखाते हैं तो 3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाते। तो वो कुरान में लिखा है ना कि घूरो मत, तो इसीलिए हमारे असूल खवातीन की हिफाजत करने के लिए है। आप देखेंगे ना फैशन टीवी, जूम टीवी देखते हैं? हाँ जी, जूम टीवी देखते हैं, क्या करते हैं? जूम कर देते हैं। हाँ, जूम इन करते हैं, हम जूम आउट करते हैं। हम जूम आउट करते हैं, वो जूम इन करते हैं। यही फर्क है। हम खवातीन की इज्जत करते हैं, लेकिन साथ साथ उनको स्क्रीन भी दी हुई है। वो स्क्रीन है ना, तो वहाँ से नजदीक है स्क्रीन, तो वो मुझे ज्यादा साफ देख सकती हैं। आप समझ रहे हैं ना? वो मुझे और साफ देख सकती हैं। यहाँ तक कि खातून का सवाल है स्टेज के ऊपर, हमारे इदारे में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 10 खवातीन है जो तकरीर करते हैं, लेकिन जब वो तकरीर करते हैं सिर्फ औरत सुनते हैं। हम नहीं चाहते कि उनके तकरीर करते हुए गैर मर्द कोई उन पर घूरे। और जब वो तकरीर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है माशाअल्लाह अमेरिका में तकरीर की है, कनाडा में की है, सऊदी अरेबिया में की है, दुबई में की है, श्रीलंका में की है, मलेशिया में, सिंगापुर में, माशाअल्लाह हजारों खवातीन हैं, तकरीर की है, मजमा बढ़ाया है। लेकिन हम नहीं चाहते कि तकरीर करते वक्त हम हिजाब को कायम रखते हैं, जब और भी मर्द हैं जो तकरीर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उनकी शूटिंग नहीं करते। आप समझे ना? तो इसीलिए इस्लाम में इज्जत दी गई औरत को। और यहाँ स्टेज के ऊपर भी इंटरमिंगलिंग होगा ना, इंटरमिंगलिंग होगा, यहाँ भी स्टेज पे कैमरा कोई दिन जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए हम खवातीन की इज्जत करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ खवातीन ही है ऑडिटोरियम में, तो माशाल्लाह एक क्या 10 खवातीन स्टेज पर बैठती और लंबी तकरीर करती पूरे दिन की, कोई एतराज नहीं, लेकिन वो सिर्फ खवातीन सुने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम हमारी खवातीन को इज्जत दें, कि इज्जत देने के लिए और महफूज रखने के लिए बेहतरीन तरीका इस्लाम ने इख्तियार किया है। और कोई सवाल आते? डेफिनेटली। जाकिर साहब, मुझे एक बात जरूरी कहनी थी। आज आप यहाँ पर वुमेन्स राइट के बारे में बात कर रहे हो। देखिए, सवाल जो हर इंसान चाहता है, हर इंसान के दिमाग में घूमता है, वो ये होता है कि हकीकत में सच क्या है। मेरे ख्याल से इंसानियत सच होनी चाहिए, मजहब एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो हमें पहले इंसानियत के बारे में बात करनी चाहिए। मैं हर मजहब की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा बात करते हैं, मैंने आपके बहुत सारे शोज देखे हैं, आपने आम शराइत के हवाले से बात की है, लेकिन नाम से ही क्यों, लेकिन इंसानियत के नाम से क्यों नहीं? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे, लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम एक मजहब, एक सोच, इंसानियत, बस इतना सोच कर चलें। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं किसी औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे पहले सवाल पे आपने एक मिसाल दी थी कि जो मिनी स्कर्ट पहने और बुर्का पहने तो मिनी स्कर्ट पर नजर पड़ेगी, और अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो जिसकी नजर जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नजर रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा। पहला सवाल, मेरे कई सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे कई सारे सवाल हैं। इंशाल्लाह मुझे मौका दें, वापस आपके पास आएंगे। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत। ये धर्म क्यों, इस्लाम, हिंदुइज्म धर्म क्यों, इंसानियत होना चाहिए। तो फिर सवाल किया कि अगर अच्छा इंसान है तो उसके लिए शराइत और ज़वाबित की जरूरत नहीं है, तो उसकी मिसाल मैं बाद में दूंगा। पहले सवाल में उन्होंने कहा, भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है।
आप समझ रहे हैं? आप जब तक अच्छे इंसान नहीं हैं तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते। समझ रहे हैं आप? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है हमारे लिए। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास। स्कूल हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतनी बात करना, मैं पहले शायद- दो सवाल का अच्छा, जवाब okay, दूं मैं साहब। प्लीज सर, प्लीज बाकी लोग भी ठहरे, डेफिनेटली। मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप बताऊंगा। हाँ, मैं रहूंगा, डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन पहले नंबर पर आप बोलते हैं कि मजहब की बात क्यों कर रहे हैं? तो मजहब की मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि लोग मजहब को मानते हैं और मैं यकसानियत पे बात करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, मसावात, कोई फर्क नहीं। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और जो आप बोलते हैं कि मजहब की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं? इसके बाद कोई तो होना चाहिए। तो मैं कहता हूं उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप कहेंगे जो इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा। फर्क है ना? कई बातें हमारी यकसा रहेंगी, कई बातें नहीं भी रहेंगी। समझ रहे हैं ना आप? कितने बात में भी डिफर, तो आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूंगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं। सबसे बेहतर कौन जानता है? हमें और आपको बनाने वाला। डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ क्योंकि मैंने तालीम हासिल की है। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में 10 डॉक्टर हों, सबको मिला के सबसे ऊपर हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला, वो बेहतर जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है। तो वो जब मैं कहता हूँ तो वो सबसे बेहतर है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी आयत, एक भी लफ्ज ऐसा नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ हो। आपको गलत फहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलत फहमी। तो इंशाअल्लाह अगर गलत फहमी है तो मौका देते हैं सवाल पूछने का, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं क्यों ये गलत फहमी है। उस गलत फहमी को दूर करता हूं मैं। मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितनी पहले किताबें आई हैं उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे बनाने वाले खुदा ने कहा है कि जब आपका शौहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं कहता हूँ इस किताब में मिलावट है। किसकी तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता है ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लेकिन लिखा है वेद में, कुरान में क्या लिखा है? पहली हिदायत इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देता है तो गलत कर रहा है, उसको सजा मिलेगी। आप समझ रहे कि नहीं? मुसलमानों को मत देखो। तो इसीलिए जब मैं कहता हूँ इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना, अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह ताला के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते हैं मुसलमान। मैं तकाबले मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी बात सिर्फ लेता हूँ और बोलता हूँ कम अज कम इस पर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है शाइस्तगी के बारे में, बाइबल में भी लिखा हुआ है, जो मैं कर चुका हूँ अमेरिका सेट में। तो मैं यकसानियत लेकर आ रहा हूँ। तो आप अगर कहेंगे इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूँ। मेरी पूरी तकरीर में कोई भी एक गैर इंसानी बात की मैंने एक भी गैर इंसानी बात नहीं की। अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात की है तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ मैंने कोई गैर इंसानी बात की? नहीं की। आप समझ रहे हैं ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। आपका जो दूसरा सवाल था, आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए, वक्त के साथ हर चीज बदलती है कि कुरान और बाइबल के मुताबिक जैसे लिखा था कि आदम ने कि वो पहले इंसान थे जो आए, उसके बाद जैसे आपने बताया कि एक ही पैदाइश के लोगों ने जिनसी अमल किया। आपने कुछ ऐसा बताया था कि आपने बताया था कि शायद उनके रिश्ते नहीं थे। आपने बताया था कि शायद उनके रिश्ते नहीं थे। तो वक्त के साथ जैसे ये चीजें बदली, जैसे वक्त के साथ आपने अभी बताया कुरान सबसे आखिर में आया, लास्ट में आया, ये मुझे खुद पता नहीं था। क्योंकि मेरा मानना ये है कि शायद हर चीज ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी, और ये आज कुरान आए हुए कई अरसा, कई बरसों और कई वक्त गुजर चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल सिरातुल हक को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अगली वीडियो तक